It means haloform reaction is only given by ketones which is having methyl group. ये group होना compulsory है. And for haloform reaction, the reagent which we are going to use is halogen in presence of any base. It can be NaOH या आप KOH भी ये जगह पे use कर सकते हो, no problem. तो क्या हो रहा है, this ketone, right? It is getting oxidized into salt of carboxylic acid along with this. क्या है ये? This is haloform, right? प्लस NaOH आपको मिल रहा है. सी ये टेस्ट प्रिसाइसली विल बी गिवन बाय आयोडीन एंड ब्रोमीन. अगर आयोडीन के साथ आप करते हो टेस्ट इन योर लेबोरेटरी तो यू विल गेट येलो पीपीटी. इट मींस अगर येलो पीपीटी आ गया तो आयोडोफॉर्म फॉर्म हो गया एंड दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट. इज इट क्लियर? तो मिथाइल कीटोन्स, तो कौन कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन विल बी गिवन बाय ऑल मिथाइल कीटोन्स as well as it will be given by alcohol having the group CH3CHOH. ये ग्रुप अगर कोई भी अल्कोहल के पास रहेगा, बिकॉज वी नो कि इसका ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा. इफ यू आर ऑक्सीडाइजिंग दिस अल्कोहल, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू yes, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड. यहाँ पे CH3 ग्रुप या CH2 कोई भी ग्रुप होगा. इट मींस दिस कार्बन इज सेकेंडरी. तो ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है. तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू कीटोन. तो इसका कीटोन में ही कन्वर्जन होगा, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O. तो ये भी अल्कोहल पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा. एंड इवन एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज एसिटाल्डिहाइड के पास भी एक ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड OH. तो ये फैक्टर है, C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है. इज इट क्लियर? एनीवन हैज डाउट? See students, in this case haloform में many a time CET और JEE में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि how many molecules of halogen and NaOH is required to convert methyl ketone into haloform. So the answer is in this case 3x2. halogens का आपको 3 molecules लगेगा fully to convert ketone into haloform and sodium salt of carboxylic acid. And NaOH का 4 लगेगा. We'll see the mechanism so that it will be clear to you कि कैसे exactly 3 molecules of इसका आपको लगता है halogen का और 4 molecules का NaOH का. Clear? You'll see the mechanism part. See, mechanism is not in the exam. Exam में नहीं, board exams में they are not going to ask you because for haloform reaction in the textbook they have not given the mechanism. Mechanism वही boards में आता है जो textbook में दिया गया है. But for understanding कि how exactly 3 moles of X2 halogen लगा और 4 moles of NaOH लगा, so I am giving you the mechanism. See, try to understand. R C डबल बॉन्ड OCH3 है, राइट? तो ये CH3 ग्रुप आई एम स्प्लिटिंग इट इन दिस फॉर्म, CH2 और H करके लिख दिया. वी नो कि वी हैव टेकन बेस इन दिस रिएक्शन, इट इज NaOH या KOH, आप कुछ भी ले लो. तो NaOH क्या देगा? इट विल बी गिविंग OH माइनस. यस और नो? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, ma'am. हाँ, see, we know कि NaOH is a base. It is going to give you OH group, hydroxy group. Now this hydroxy group, it is going to extract the proton. ये OH minus proton के साथ जो अभी वो कौन सा proton extract करेगा जो feasible है या जो more acidic in nature है. This carbon का proton is more acidic in nature, तो definitely it is going to attack this hydrogen atom. अगर ये hydrogen atom ये अपने साथ लेके जा रहा है तो क्या बनेगा? OH and H combines to gives you H2. yes water.
तो water निकलेगा, H2O will be minus. Clear? And this bond is going to fall on this carbon atom. तो अगर ये carbon atom पे fall out हो रहा है तो ये carbon पे charge क्या आएगा students? R is as it is, C double bond O is as it is, on CH2. What charge is coming? positive. O lone pair of electrons. Yes, negative charge is coming. Clear? अभी ये तो जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वी नो इट इज कार्ब एनियन, और पॉजिटिव रहेगा तो कार्बोकेटायन. अभी क्या हो रहा है, ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका बढ़ रहा है. अभी अगर हैलोजन रोल में आ रहा है, वी आर adding halogen in this case, we know halogen X2, यहाँ पे पोलैरिटी होता है, इट इज डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस. अभी ये कार्बन क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये जो एक हैलोजन X है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा. Now it is going to extract this, तो X को वो अपने साथ लेके जाएगा. तो क्या फॉर्म होगा, R will be as it is, C डबल बॉन्ड O is as it is, और ये CH2X बना. Have you understood this? ये कैसे बना? Any doubt? At least say yes or no. Do you have any doubt? No, ma'am. So see, ये X, this X is extracted by this carbon. तो ये X तो बच गया. Now it is going to combine with, यहाँ पे भी Na बच गया. तो Na plus and X minus is going to give you minus NaX. Okay, now what is happening? अभी एक हाइड्रोजन तो अपने OH माइनस के साथ दे दिया, आपको मिला RC डबल बॉन्ड O CH2. अभी फिर से अगर ये मुझे दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है तो कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लगेगा स्टूडेंट्स? Yes, very good. 2 molecules of NaOH. Okay, और इसको सब्स्टिट्यूट करना है X से, 2 बार माइनस चार्ज आएगा, मतलब 2 बार X2 आपको लगेगा, तो 2 molecules of X2. तो आपको क्या मिलेगा, द स्ट्रक्चर विल बी R is as it is, C double bond O is as it is, all the hydrogen atoms is replaced by X, तो आपको मिलेगा RC double bond O CX3. क्लियर? नाउ अगेन ये तो आपको एक कंपाउंड मिल गया. नाउ अगेन NaOH is going to take, we are going to add into this reaction. Now this again OH minus is going to extract. अब ये क्या कहाँ पे अटैक करेगा OH minus? We know the carbonyl carbon is delta positive, this is delta negative. तो OH minus कहाँ पे अटैक करेगा? Where it is going to attack? OH minus कहाँ पे अटैक करेगा? डेल्टा पॉजिटिव कार्बन. कार्बन पे. अभी यहाँ पे वो उसको अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रुप, ये बॉन्ड अपने साथ लेके निकल जाएगा. तो क्या होगा, R is as it is, C डबल बॉन्ड O is as it is, OH तो आ गया नो डाउट, प्लस यहाँ पे C पे माइनस चार्ज आ रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? C ये बॉन्ड अपने साथ लेके जा रहा है, तो इस पे माइनस चार्ज है और X3 है. अगर वाटर रोल में आ रहा है तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, या बेस है, बेसिक मीडियम है, तो ONaOH प्लस CHX3. तो टोटल हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन? कितना लगा आपको NaOH? 3. नहीं, लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली. यहाँ पे पहला एक NaOH गया, यहाँ पे 2 गया, मतलब टोटल 4. यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, और वो एक्वस कंडीशन में, तो X भी दिया जाएगा, तो 4 एंड X2 कितना लगा, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल X2 कितना लगा आपको, 3. मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन CET और JEE में पूछा जाता है कि फॉर कन्वर्जन्स ऑफ कीटोन या फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन इनटू हैलो फॉर्म, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हैलोजन एंड NaOH इज रिक्वायर्ड. हैलोजन्स का 3 एंड फॉर NaOH इट इज 4. So the mechanism is clear with you? Hello. लास्ट वाला स्टेप बता दीजिएगा ना वापस. कौन सा, ये वाला? हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एसिड मिला है. क्लियर?
तो आपने NaOH ऐड किया है, योर मीडियम इज बेसिक मीडियम, तो डेफिनेटली क्या होगा, एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद अनदर मोल ऑफ NaOH और एक स्टेबल आपको मिलेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O Na, एंड दिस NaOH इज इन एक्वस कंडीशन, तो वाटर तो प्रोटॉन देगा ही देगा, ये C पे माइनस चार्ज है, तो दिस प्रोटॉन विल बी टेकन बाय दिस कार्बन और आपको मिलेगा CHX3, दैट इज हैलो फॉर्म. क्लियर? Okay, ma'am. Thank you. So I'm giving you some examples. Tell me आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा. Okay. Okay, the question is, in the given examples, which compound will give positive haloform test? First, second, third, fourth, या none of the above? Fourth. Okay. First क्यों नहीं देगा? उसमें CH3 नहीं है. हाँ, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये तो देगा ही नहीं. सी यहाँ पे बीच में CH2 आ रहा है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि ये CH3 आपको कन्वर्ट कर सकते हो. डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O को CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए. क्लियर? इन द सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं, इट इज डाइफिनाइल कीटोन, तो इसके पास CH3 है ही नहीं. इन द थर्ड केस एज वेल ये CH2 दोनों बीच में आ रहा है, तो ये भी नहीं देगा. बट इन दिस केस आई हैव गिवन यू विच अल्कोहल इट इज. Secondary. प्राइमरी सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल. दिस अल्कोहल इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो. सी hypohalite is acting as a oxidizing agent, so definitely it can convert this alcohol into ketone, that is CH3 C double bond O CH2 CH3. तो डेफिनेटली ये ग्रुप स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो सकता है हैलो फॉर्म में, दैट इज CH3. क्लियर? हाइपोहैलाइड कब यूज करते हैं मिस? हाइपोहलाइट तभी यूज करते हैं अमन, जब भी अपन ने यहाँ पे देखा है ना, X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH जो फॉर्म होता है NaOX, दैट इज द रिएजेंट हाइपोहलाइट, व्हिच इज एक्चुअली. OX हाइपोहैलाइड है. हाँ OX हाइपोहैलाइड है. हाँ, NaOX, यस, हाइपोहलाइट, OX हलाइट. क्लियर? इट इज अ रिएजेंट इन हालोफॉर्म रिएक्शन. मिस बुक में तो उसको सोडियम हाइपोहैलाइड बोला है. हाँ, तो वही होगा ना रे, अगर पोटेशियम यूज किया तो पोटेशियम हाइपोहलाइट होगा, सोडियम यूज किया तो सोडियम हाइपोहलाइट होगा. आयोडाइड बोलोगे आप उसको प्रिसाइसली, ये मैंने कॉमन में लिखा है हाइपोहलाइट. क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे आयोडीन यूज किया I2, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? NaOI, राइट? तो उसका नाम क्या बनेगा? सोडियम हाइपो आयोडाइड. क्लियर? हाँ. आयोडोलाइट. अगर यहाँ पे ब्रोमीन यूज किया और KOH यूज किया तो क्या बनेगा यहाँ पे? KOBr. तो आप उसको क्या बोलोगे? पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड. ब्रोमोलाइट. लाइट आना चाहिए. क्लियर? So this was the haloform reaction. Okay, write down the question. ये question solve करो. Write the chemical reaction. Taking place
when propane to all is treated with iodine and NaOH. सॉल्व करो. What is the answer you have got? Which salt you have got? कौन सा सॉल्ट मिला? Yes, Saurabh. Which salt you have got in the reaction? कर रहा हूँ मिस अभी. Okay, solve करो. Okay, what is the structure of propane to all? वो बताओ. Structure of propane to all. CH3, CH2, OH, CH. CH3, CH, CH3, OH. बराबर? ओके. उन्होंने क्या बोला है? अगर उसको आप इसके साथ, yes, अमन, but carboxylic salt, but which salt? Tell me the name. इसको आप ट्रीट कर रहे हो NaOH in presence of iodine के साथ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? That is the question. See, first what is happening? We know NaOH on reacting with I2 क्या फॉर्म होगा? NaOI, सोडियम हाइपोहलाइड फॉर्म हो गया है. सोडियम हाइपोआयोडोलाइट. Clear? We know it is acting as a oxidizing agent. This is secondary alcohol, students. So definitely secondary alcohol का oxidation किसमें होगा? Secondary alcohol on oxidation gives you कीटोन. कीटोन. तो डेफिनेटली यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 मिल गया. So we have got a compound which is having a methyl ketone group. ये ग्रुप को कन्वर्ट करो, ये ग्रुप को कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों ग्रुप आइडेंटिकल इन नेचर है. अभी इसका रिएक्शन अगर NaOI से हो रहा है, we know कि क्या होता है यहाँ पे. दिस ग्रुप डायरेक्टली यहाँ पे कट कर दो, नहीं समझ में आ रहा, तो ये C के साथ क्या होगा? It will get convert into किसमें कन्वर्ट होगा? नहीं आकांक्षा, ONA तो इधर आएगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा. ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज गोइंग टू सी स्टूडेंट्स, दिस ग्रुप यहाँ पे कट होगा, तो ये ग्रुप इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिड. तो कौन सा एसिड बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड OH, बट Na है, बेसिक मीडियम है, इसलिए ONA. तो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड you're getting, and this group is going to convert into halo form. तो यहाँ पे क्या होगा? C, yes, halo form. More precisely, it is iodo form. तो CH3 will be given out. Is it clear? So your product of the reaction is sodium salt या sodium acetate along with iodo form. Any doubt in the reaction? मिस उसको ऑक्सीडाइज किसने किया? किसको ऑक्सीडाइज किसने किया? मिस वो नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया? Nascent oxygen, it is an oxidation reaction, so I have written here oxidation. See, sodium hypoiodide है, वो क्या है? कौन सा reagent है? Oxidizing है, reducing है? Aman, which reagent it is? मिस reducing. Very good, पूरा reaction हो गया और अब जाके बोलते हो reducing. It is an oxidizing agent, sodium hypohalite.
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन ही चल रहा है ना, तो डेफिनेटली वो पहले क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ये नहीं देख रहा है क्या है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो उसमें किसको ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अभी कीटोन के साथ साथ मीडियम में सोडियम हाइपोआयोडाइड भी है, तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड एंड हैलोफॉर्म। क्लियर? ओके मिस, हाँ। Okay. So, we have started with aldol condensation. Second, canisarose complete हो चुका है. Third reaction, haloform. Now, the next reaction which we are going to start with is oxidation and reduction reaction of aldehyde and ketones. See students, try to understand aldehyde को oxidize करना बहुत easy है. We know primary alcohol on oxidation gives you, अगर primary alcohol को आप oxidize करते हो तो आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड। Aldehyde. Aldehyde on oxidation gives you Carboxylic acid. carboxylic acid, we know. So aldehyde का oxidation आप किसी भी reagent के साथ करो, whether the reagent is mild oxidizing agent या कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने दो, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू एसिड ओनली. कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होगा. अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इवन इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स एज वेल एज इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स. But if we are supposed to do the oxidation of ketone, we are n number of time I am telling ketone का oxidation होना possible है क्या? Can we oxidize ketone under normal condition? No. No. So ketone can't be oxidized to carboxylic acid under normal condition, but if we are doing the vigorous condition, अब conditions कुछ अलग कर देते हो, strong oxidizing agents use करते हो, तो definitely ketone can be converted into carboxylic acid. अभी ऐसे कौन से reagents है जो ketone को oxidize करते हैं carboxylic acid में, वो आपको याद रखना है. In this case, we can use concentrated HNO3 या आप दूसरा reagent use कर सकते हो, इधर ही I'm writing it down, alkaline KMNO4, even it is acting as a strong reagent. Then we have, see अभी अपन ने देखा haloform reaction, sodium hypohalite, वो भी कीटोन को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है. Even in this case, we can use chromium trioxide. These are the reagents which converts ketones into acid. Haloform already I have written, so I am not writing that reagent again here. Even haloform, ये sodium hypohalite आपको याद रखना है. तो कीटोन का एसिड में कन्वर्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कर सकता है, अल्कलाइन KMNO4 कर सकता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कर सकता है. Even there is one special reagent, अगर आपको नाम. Okay, what is the structure of acetic acid? CH3 C double CH3COH. CH3 C double bond OH. Okay, now try to understand ये C, okay, C double bond OH आपने लिख दिया. तो अभी ये जो C का H3 था, I am replacing all the H by fluorine atom. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CF3 और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया. किसी को इसका नाम पता है? F कितने हैं? No, it is not fluoronic acid. It is trifluoroperoxy. This is peroxy linkage. So trifluoroperoxy, and the main compound was acetic acid. So the name becomes trifluoroperoxy acetic acid. It is very important reagent. Even we have another reagent. Now try the name of this compound. ये वाला लिंकेज है,
C double bond O OH O linkage आ गया ना, तो it is peroxide linkage. You have seen hydrogen peroxide H2O2, वैसा वाला peroxy linkage देखा था ना आपने, वैसा ये trifluoroperoxy acetic acid है. Can you guess the name of this compound? 2-chloro नहीं, it is not. यहाँ पे एक O I am missing. Okay. Yes, Akansha, now you can try it out. Earlier your name was right. Yes, Aman, क्या नाम आएगा इसका? नहीं, 3-chlorobenzoic acid कहाँ से आएगा? It is not benzoic acid. Linkage कौन सा है? OO linkage आ गया. 2-chloro. Okay, अगर you are right, Akansha, you are right. But अगर common names में बोलना है तो what is the common name? ये कौन सा position है? With respect to acid, this position is ortho, meta, para. Yes, it is meta. So we can call this compound as meta-chloroperoxy benzoic acid. Many a times in CET or JEE, they are just writing the short form of this MCPBA. इसका initial से लिखा जाता है arrow पे. तो MCPBA is nothing but meta-chloroperoxy benzoic acid. ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये थोड़ा अलग टेस्ट देगा एंड दैट टेस्ट इज नोन एज विलेगर टेस्ट. विल सी दिस आफ्टरवर्ड्स. क्लियर? इसका नेम रिएक्शन है. दिस इज नॉट इन योर बोर्ड एग्जाम बट सीईटी और जेईई में डेफिनेटली द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक. सो आपने ये नोट डाउन किया. नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करते हैं. हेलो, हाँ, have 2 you मिनट taken मैम. it down? हाँ, fine. अभी क्लियर है स्क्रीन? स्क्रीन ब्लर है कि क्लियर है? क्लियर है. ओके, क्लियर है. ऑल थैंक यू. ठीक है, हैव यू टेकन डाउन? ओके, फाइन. See students, now try to understand one concept here. Abhi we are taking this ketone. See, oxidation होने के लिए for oxidizing ketone टू एसिड अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो ये कीटोन के पास कंपल्सरी अल्फा CH2 ग्रुप होना चाहिए. Only that ketone will get converted into acid which is carrying alpha CH2 group. Now say, tell in this case which is your alpha carbon. What is the functional group in this case? Ketone. Function, yes, it is. Ketone. This is ketone, ये functional group है. तो we know बाजू वाला carbons. Alpha कौन सा है? Even this is alpha. ये भी alpha है. इसके पास CH2 group है? Yes. इसके पास CH2 group है? Yes. Whether this is symmetrical ketone or unsymmetrical ketone. Symmetrical. Hello. Symmetrical. Symmetric. Yes, it is Symmetrical. symmetrical ketone. Now try to understand the concept. यहाँ see आपके textbook में गलत दिया गया है. The structures of acid which they have drawn is wrong. वो examples गलत हो चुका है. क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ पे कट दो. क्लियर? जो अल्फा CH2 ग्रुप है उसको आपको एसिड में कन्वर्ट. आप इसको एसिड से कट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. ये दोनों आइडेंटिकल इन नेचर. इफ आई एम गिविंग कट हियर तो कौन सा एसिड आपको मिलेगा? ये CH3 इज एज इट इज तो उसको वैसा ही लिखो CH3. देन C उसके पास डबल बॉन्ड O है, वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के बाद. प्लस
अभी ये ग्रुप को आपको एसिड में कन्वर्ट करना है, जो अल्फा सी एच, ये भी अल्फा CH2 था नो डाउट, बट अभी आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, इसको कन्वर्ट करना है। इसके पास कार्बन एटम्स कितने हैं? हाउ मेनी कार्बन एटम्स इट हैज? 1. 1. तो दिस यू आर गोइंग टू पुट 1 और फिर डबल बॉन्ड दो OH और H, तो आपको यहाँ पे दो एसिड्स मिलता है, वन इज एसिटिक एसिड, सेकेंड वन इज फॉर्मिक एसिड. Is this example clear or you have any doubt in this? तो OH कैसे हो गया? ketones, हाँ, try to understand. Ketones on oxidation gives two molecules of carboxylic acid. One is this and other one is this. तो यहाँ पे क्या होता है, जो अल्फा CH2 ग्रुप होता है उसको आपको कन्वर्ट करना है एसिड में, और ये तो ग्रुप ऑलरेडी C डबल बॉन्ड हो, वहां पे OH देना है. Don't go into the mechanism, just try to understand the concept. If I'm giving you this example, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीडेशन करो एंड टेल मी क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा. पहला ये देखो वो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, whether this is symmetrical or unsymmetrical. Symmetrical. Yes, try to identify the product. Which acid you have got? दोनों साइड से प्रोपेन, और किसी को आंसर मिला? Yes, Akansha, you are right. Amla, what answer you have got? Propanoic acid and ethanoic acid. हाँ, see, either you do the, see, ये दोनों alkyl groups which is attached to carbonyl group is same. I can give cut here or cut here. So I'm giving the cut on this side, I'm showing the breakage here. So I know this is alpha, इसके पास CH2 group भी है, तो definitely this is going to get convert into C double bond O. तो ये CH3 पहला वैसा ही लिखो, CH3, और ये ग्रुप होगा convert into C double bond O, OH. So once you are getting ethanoic acid and the second molecule is CH3, CH2, C double bond O, OH. Students, do you have any doubt? You can ask me right now. किसी को डाउट नहीं है? ये आपको समझ रहा है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? मैम मेरा फर्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH कौन सा फर्स्ट? ओके, पहला कंपाउंड क्या है आपको? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बराबर, और सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड OH. हाँ वही है ना, मैंने ये पहला लिखा है, ये बाद में, दोनों सेम है. आप कैसे भी, आप यहाँ से फर्स्ट लिखो या यहाँ से फर्स्ट, इट्स वन, पर दोनों प्रोडक्ट सेम है ना. तो दिस वाज द केस ऑफ सिमेट्रिकल ketones, बट if I'm giving you this example, ओके, पहला ये वाला नॉर्मल करो फिर से और मुझे बताओ कौन सा एसिड आपको मिलता है. सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? Symmetrical. Yes, symmetrical है. Now try to identify the products. अब यहाँ पे कोई भी KMnO4 भी यूज कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन. कहाँ पे? एक पे कट दो.
कौन सा दो एसिड्स मिला? Butanoic acid and propanoic acid. Very good. Butanoic acid and see I have given cut here. आप यहाँ पे ब्रेकेज दिखा रहे हो. This CH2, yes, ये अल्फा, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा ये भी है, दोनों में से एक, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है. तो CH3, CH2 and this C I have converted into C double bond OH. तो मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड मिला. बाकी ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा. आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस साइड CH3, CH2, then comes CH2 and this group you are converted into C double bond OH. So one you are getting propanoic acid, the second molecule is butanoic acid. Clear? But abhi if I am giving you this example, whether this symmetrical है, unsymmetrical है. Unsymmetrical. Now this ketone is unsymmetrical in nature. Clear? Unsymmetrical ketone है. Now try to understand. पहला तो ये देखना है कीटोन में उसके पास अल्फा CH2 ग्रुप है, इसके पास, ये कीटोन के पास. Yes, it is having. हाँ, ये भी अल्फा CH2 ग्रुप है, ये भी अल्फा CH2 ग्रुप है. तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. तो इसके पास अल्फा CH2 ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होगा एसिड में. नाउ इन दिस केस, नाउ लुक हियर, यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? 4. 4. और ये साइड में जाओगे तो कितने कार्बन का चेन है? 3. 4 carbon chain. And if I'm going from this side, it is 3 carbon chain. Clear? Now try to understand. यहाँ पे the scientist name Popov's, यहाँ पे Popov's rule आता है. वो क्या बोलता है कि ऐसा अल्फा CH2 ग्रुप आपको देखना है जो लार्जर अल्काइल ग्रुप को कनेक्टेड है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कनेक्टेड है. नाउ लुक एट दिस CH2 ग्रुप. इट इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स? ये CH2 ग्रुप कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 3. 1 2 3. बट ये CH2 ग्रुप कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है? 2. Are you understanding? See, this CH2 group is connected to propyl. अब अल्काइल ग्रुप का अगर कन्वर्शन देख रहे हो तो दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल ग्रुप. तो बड़ा ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल है कि इथाइल है? प्रोपाइल है. तो डेफिनेटली ऐसा, तो यहाँ पे नोट लिखना है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्फा CH2 ग्रुप attached to larger alkyl group should be oxidized. तो अभी मुझे आंसर बताओ, आपको कौन सा एसिड मिलेगा? दूसरा वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा? नहीं होता है. ये अनसिमेट्रिकल कीटोन की खासियत है कि जो अल्काइल, लार्जर अल्काइल ग्रुप को है उसका ही ऑक्सीडाइज होगा. मतलब आपको कौन सा ग्रुप CHO में कन्वर्ट करना है वो बता रहा है कि कौन सा अल्फा. दोनों एसिड ही मिलेगा. मिस इसमें प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा? नहीं, प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा. यही तो खासियत है ना, वो पोपोव्स रूल आता है. जैसे अपन ने सेटजेफ रूल देखा अल्कीन्स के केस में, लार्जर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स को कनेक्ट रहेगा, वो अल्कीन मेजर में होगा. प्रियंका, द आंसर इज रॉन्ग. जस्ट क्रॉस चेक. आकांक्षा, नो. Look properly whether it is pentanoic acid or some other acids. Butanoic acid. Yes, आशुतोष, आपको क्या आंसर मिला?
आशुतोष, what is the answer you have got? ब्यूटेनॉइक मिला सबको? एनी डाउट? सी नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला CH2 ग्रुप लार्जर, तो इसको आपको COOH में कन्वर्ट करना है, दैट इज COOH में, तो आपको क्या मिलेगा? द आंसर विल बी CH3 इज एज इट इज, CH2 इज एज इट इज, CH2 इज एज इट इज, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे भी आप गिवन द ब्रेकेज, तो ये ग्रुप C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा, तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यू आर गेटिंग ब्यूटेनोइक एसिड प्लस, अभी ये CH3 आई एम राइटिंग इट एज इट इज, then CH2, then CH2, and then C double bond OH. Which acid it is? Again, it is butanoic acid only. Clear? मिस ऐसे अनसिमेट्रिक सेम ही देते हैं क्या? अनसिमेट्रिक सेम ही देंगे, और अब एग्जांपल देख सकते हैं, तो सी एग्जांपल्स, इट डिपेंड्स ना, मैंने दोनों यही साइड्स पे वैसा ग्रुप लिया इसलिए सेम आ सकता है. विल टेक अनदर एग्जांपल. हैव यू टेकन डाउन दिस एग्जांपल? ओके, यू सॉल्व दिस. मिस आपने वो पोपॉप कब बताया था, कब लगता है पोपॉप? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में, unsymmetrical ketones, that rule is applied for unsymmetrical ketones. In that case, alpha CH2 group get converts into C double bond OH. Okay, इसका करो oxidation. Okay, try out the reaction and tell me which acids you are getting in the reaction. Yes, Balaji. Are you there? yes miss कर रहा हूँ. Tell me, okay, in the first case, आप कौन सा अल्फा CH2 को कन्वर्ट करोगे C डबल बॉन्ड OH में? वो लेफ्ट साइड वाले को, C डबल बॉन्ड के लेफ्ट में वाले. This side, right? So this is हाँ. going to get convert. Why? क्योंकि वो अल्फा है ना, ये भी तो अल्फा है. वो CH2 वो है ना मैम. क्या है? हाँ. पोपॉफ ने क्या बोला है? कौन सा अल्फा CH2 को कन्वर्ट करना है C डबल बॉन्ड OH में जो मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, या बिगर हाँ. नंबर? क्लियर? तो ये इसके पास तो एक मिथाइल ग्रुप है, बट इसके पास है क्या कोई अल्काइल ग्रुप? नहीं मिस. 0 है. हाँ, तो डेफिनेटली इसको ही कन्वर्ट करना है. तो बोलो आंसर क्या मिलेगा? वो कर रहा हूँ. अब ये आपको समझा तो फटाक से आंसर आना चाहिए था. ब्रेक यहाँ पे होगा, बराबर ना? यहाँ पे ब्रेकेज है. हाँ. Yes, Akansha, you are right. Absolutely. बोलो. CH3 मिस, वो CH2 के बाद OH लगेगा. CH3 वैसा ही रहेगा. हाँ. अभी ये इसको आपको कन्वर्ट करना है एसिड में, बराबर? हाँ. तो उसको C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, हाँ. बराबर? प्लस ब्रेक हो गया है, तो ये तो वैसा का वैसा है. ये CH3 आई हैव रिटन हियर, ये C डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा. तो यू आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड. सो अमन, whenever it is unsymmetrical, definitely दोनों एसिड सेम होता है. Okay, go for second. कीटोन है, yes it is कीटोन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है. फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई. अल्फा CH2 ग्रुप है इसके पास, ये कीटोन के पास.
Yeah. कौन सा है? राइट साइड का। See, this is alpha, even this is alpha. दोनों अल्फा कार्बन है, बट इसके पास व्हाट आई हैव सेड, इसके पास सिर्फ एक H है, तो यहाँ पे CH है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे CH2 है। तो कंपलसरी ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा CH2 होना कंपलसरी है। तो ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा क्या? कैन दिस C बी ऑक्सीडाइज्ड? नहीं, No. बिकॉज No. CH2 नहीं है, वो CH है। तो अभी उसका आंसर क्या होगा बोलो? तो ब्रेक कहाँ पे होगा? वी नो द ब्रेकेज विल बी हियर, और यही ग्रुप को कन्वर्ट करना है एसिड में। तो बताओ क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर, रिंग ओपन होगा। यस पवन, टेल मी द आंसर। एक मिनट। हम्म, सिद्धेश, नेक्स्ट आंसर यू आर गोइंग टू गिव मी। नहीं, रॉन्ग है। किसने दिया आंसर? उज्जवल, थिंक ऑफ इट। रिंग ओपन हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो दो दो कैसे मिलेगा? Yes. Kansha, you are partly right. Miss but 2 answer methyl wrong है। हाँ, hexane 1,6 dioic acid. वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है, दिस CH2। तो ये तो वैसा का यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये पहला C वाला लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH आ गया। क्लियर? अभी ये C किसको अटैच है? ये वाले C को, तो दैट आई एम प्लेसिंग हियर। ये CH3 से कनेक्ट हो जाएगा H। अभी CH2 कितने? 1 2 3, तो 1 2 3, और ये CH2 कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड OH में। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोइक एसिड, सॉरी हेक्सेन डाइओइक एसिड। एनी डाउट? किसी को ये नहीं समझा तो यू कैन आस्क मी। रिंग ओपन हो रहा है, ब्रेकेज नहीं मिल रहा है, तो आपको दो मॉलिक्यूल्स मिल ही नहीं सकता है। क्लियर उज्जवल? नहीं समझा। ओके, नहीं समझा, फाइन। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी पहला क्या करना है आपको? लोकेट करना है कि इसके पास ये कीटोन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास CH2 है, अल्फा CH2 है, तो डेफिनेटली यही ग्रुप कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड OH में। यहाँ पे कट मिल रहा है, ब्रेक हो रहा है ये, तो दिस C डबल बॉन्ड O आई हैव रिटन एज इट इज, और यहाँ पे तो OH लगाना है, लगा दिया। अभी ये C किसको कनेक्टेड है? ये वाले कार्बन से, तो वो वाला लिखा, वो CH3 से अटैच है। ये CH2 एज इट इज है, तो 3 टाइम आपने एज इट इज लिखा। ये CH2 यू हैव कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड OH, वो मैंने C डबल बॉन्ड OH में लिख दिया। एज इट इज हुआ था। यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स? दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग मिल रहा था, ये रिंग कंपाउंड है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा जिसमें दो एसिड्स हो। अभी ये ट्राई करके देखो। बहुत पहले तब से बरोबर ही था, तो इसके पहले भी ऐसा होता था। फिर जस्ट म्यूट योर माइक। Pavan, you will mute your mic. Okay, tell me the answer. किसका आंसर है? अल्फा CH2 है। कौन सा अल्फा CH2 है? दिस इज Miss अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी है, ये भी है, दोनों सेम है, ये भी CH2 है, ये भी।
तो इधर में आप यहाँ से कट दो या यहाँ से कट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ से देते हैं और इसको कन्वर्ट करो COH में, तो बताओ क्या मिलेगा। Yes, Aman, you are right. Aryan, right. It is hexane dioic. See, अभी ये C डबल बॉन्ड O आप वैसा ही लिखो, उधर OH लगा दो। अभी ये 1 2 3 4 है, मतलब CH2 ग्रुप कितने बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, और ये ग्रुप आपने कन्वर्ट कर दिया C डबल बॉन्ड O OH में, तो 4 5 6, तो इट इज हेक्सेन। क्लियर? E को रिप्लेस नहीं करना है, सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। डाइओइक एसिड, सबको मिला ये स्ट्रक्चर, इसी का नाम है, इट इज फेमस बाय इट्स कॉमन नेम। जब ये अपन एसिड स्टडी करेंगे तभी आएगा, बट अभी नोट डाउन करके रखो, एडिपिक एसिड। किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा? शुड आई गिव मोर एग्जांपल्स? मिस वो एसिड का नाम बताओ ना, थोड़ा दिख नहीं रहा। एडिपिक एसिड, एडिपिक हेक्सेन डाइओइक एसिड का दूसरा नाम है एडिपिक एसिड। पिक है क्या? PIC? ADIPIC, yes, adipic acid. Clear? Okay, now one more example. Let's see whether you are able to solve this. ये दोनों रिएक्शंस का, ये दोनों रिएजेंट्स के साथ क्या प्रोडक्ट मिलता है? Do the oxidation reaction and tell me what is the product you are getting in the reaction. Has anyone got the answer first case में? मिस एक ही मिला, इथेनॉइक मिला, दूसरा वाला नहीं मिला। दूसरा वाला क्यों नहीं मिला? ओके, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? ये समन कौन सा ग्रुप है? CH। CH है, तो वो कन्वर्ट होगा क्या? नो। नो, तो कहाँ पे ब्रेकेज होगा? यहाँ पे होगा। तो दिस अल्फा यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एसिड, तो क्या मिलेगा? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक की मिथेनॉइक? यस साहिल, यू आर राइट, इट इज फॉर्मिक एसिड, उसी का नाम है मिथेनॉइक। अमन, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सी ये ग्रुप वैसा Yes, ही ma'am. रहा, ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, ये एक ही कार्बन है तो HC डबल बॉन्ड OH में ही कन्वर्ट होगा ना. Yes, Akansha, you are right. It is cyclopropanoic acid and methanoic acid. Yes. अगर ये I2 के साथ हो रहा है रिएक्शन, तो ये कौन सा रिएक्शन है? Which reaction it is? Hello. Haloform. So tell me what is the product you are going to get? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हालोफॉर्म रिएक्शन में क्या बोला है मैंने? What I have said कि ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Miss वो ट्राई आयोडो. यस, आयोडो फॉर्म मिलेगा, दैट इज CHI3 मिलेगा, प्लस ये ग्रुप वैसा का वैसा रहेगा, C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम सॉल्ट मिलेगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? सेकेंड केस में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कौन सा C कन्वर्ट होगा COH में? एसिड में कौन सा C जाएगा? ये वाला C जाएगा कि CH3 वाला जाएगा? नहीं, CH3 वाला जाएगा. CH3 Right वाला. यस, राइट वाला. तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रिंग इज एज इट इज, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ग्रुप फिर से आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड ओनली. क्लियर? सी अब n नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तभी ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा. विल स्टॉप हियर. एनी डाउट? Okay, fine. I guess there is no doubt. So